Hello everyone. I hope you all are doing well and your preparation is also going well. First of all, welcome to our page, Renter's Approach to Labasna. The only motive is to help you in its prelims so that you can write your mains 2026. As you all know कि जो हमारी कट ऑफ जाती है वो ऑलमोस्ट 90 to 95 के बीच में जाती है सब्जेक्ट टू द वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन द पेपर्स. बट एक स्टैंडर्ड बेस मार्क हम रखें तो वो 95 के आसपास का ही माना जाता है कि इफ़ यू स्कोर 95 मार्क्स इट विल बी क्लियर चांस टू ऑल ऑफ यू फॉर राइट द मेन्स. So this benchmark, but this benchmark is too high that it becomes difficult to achieve. People end up scoring in 70 to 80 marks or even less sometimes, and it becomes difficult to cross this 95 benchmark. So why is that happening? And also you must be aware about things which is going on the YouTube and other platforms like the MCQ aptitude development, tricks, logic, guesswork, risk taking aptitude, एलिमिनेशन टेक्निक एंड सो ऑन. बट यार यूट्यूब पे इतना गंद मचा हुआ है ना कि हर कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बता रहा है. एंड उस चक्कर में क्या है कि जो एक सीरियस एस्पिरेंट है ना वो कंफ्यूज हो जाता है. वो सिर्फ उन वीडियोज़ में ही डूबा रह जाता है. ही और शी स्टक्स इन दोज वीडियोज़ ओनली. एंड उससे चक्कर में क्या होगा ना कि वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाता, वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाता जो रिक्वायर्ड है उन ट्रिक्स के लिए. एंड बेसिकली कोई ट्रिक्स नहीं होती, कुछ सच एलिमिनेशन नहीं होता. ये बेसिकली प्योर होता है आपका लॉजिक. आई वुड से मैं इसको लॉजिक बोलता हूँ. मैं कभी ट्रिक्स नहीं बोलता इसको, मैं कभी गेस वर्क नहीं बोलता, मैं लॉजिक बोलता हूँ इसको. एंड कुछ लोग इसे एप्टीट्यूड बोलते हैं. सो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स. इट इज़ समथिंग विच majority of aspirants use, and they apply it with the confidence. And when they apply it with confidence, they clear the prelims easily and they write the mains. So yeah, let's talk about this. First of all, this, yeah, when we listen to renters or people who have given multiple mains, we get to know about one common thing, that they have practiced the PYQs, they have analyzed the PYQs extensively. But when a new aspirant, even and those people who have given one or more attempts, they don't know what PYQ analysis is all about. Even when I was given my first attempt in 2023 and second in 2024, I was not aware what a PYQ analysis is all about. I don't know. So with over time, with the guidance from my seniors, from some teachers and even some toppers, I get to know what PYQ analysis is all about. And today I'm sharing my experience, my knowledge with you, which helped me to write the mains 2025. And this is not a knowledge for myself which I gained. It is something which helped my friends also who were preparing with me. And in our group of 4 to 5 people, we were able to like 3 of us, we were able to write the mains this year in 2025. So we are going to share our things, we are going to share our experiences and what we have done in the main exam hall, due to which we were able to clear the prelims and we were able to write the mains. So let's first talk about what analysis of PYQ is all about. So PYQ analysis is about 3 things. It is about 3 things. First, understanding the demand of UPSC, that what UPSC is asking. अगर पार्लियामेंट का चैप्टर है तो पार्लियामेंट के चैप्टर में से यूपीएससी क्या पूछ रहा है. मनी बैंकिंग है तो मनी बैंकिंग में से यूपीएससी क्या पूछ रहा है. तो हमें वो टॉपिक्स के बारे में जानना होता है, दैट व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग. एंड उसके बाद आता है डेप्थ, कि उसकी कितनी डेप्थ है, दैट टू व्हाट एक्सटेंट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, जब बुद्धिज्म जैनिज्म की बात आती है, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. बट फेवरेट टॉपिक होने के साथ साथ एवरी ईयर यूपीएससी अनफोल्ड अ न्यू लेयर. हर साल यूपीएससी एक नई लेयर में जाता है और उसका एक्सटेंशन बढ़ता है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती है. तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? हमें ये PYQ से पता चलती है कि कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक हैं. एवरी ईयर यू सी कि ना एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले ना ये इंस्टीट्यूट्स वाले या जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, ये लिस्ट ले आते हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स.
ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये PYQs के बेसिस पे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं एंड स्पेसिफिकली जो उनका कंटेक्स्ट रहा है करंट अफेयर्स में। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी ने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं एंड 2025 में वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हुआ था, तो जब वो लिस्ट बनेगी तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट डाल दिया जाएगा। तो ये सब जो PYQs हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि व्हाट टॉपिक्स यूपीएससी इज आस्किंग एंड टू व्हाट एक्सटेंट टू द कि उसकी डेप्थ कितनी है उस टॉपिक की। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द यूपीएससी। सेकेंड थिंग, डेवलपिंग द कंटेंट फ्रॉम PYQs। अब PYQs है हमारे पास, अब PYQ सिर्फ देखने नहीं है कि उनमें से कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कि यूपीएससी किस डेप्थ में जा रहा है, नहीं, उतना नहीं करना, उसके एक फर्दर स्टेप में जाना है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को भी हमें एनालाइज करना है, सिर्फ उसके आंसर तक नहीं जाना। फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में मैं क्या करता था कि मैं पेपर लग रहा था PYQ का, मैं सिर्फ उसके आंसर तक लिमिटेड था, उसके आगे यूपीएससी ने जो दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको मैंने कभी प्रेफर नहीं किया। आई डिडंट read about these things like the other topics, the other options which were available in the question. So developing the content from UPSC PYQs. So this is the second thing, we have to check those other options, and we need just basic information about those topics. तो सेकेंड चीज़ है ये डेवलपिंग द कंटेंट ऑफ द PYQs। आई एम जस्ट टेलिंग दिस कि दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, ऑफ दीज वीडियोज, because time is less and I cannot help you much in developing the content from PYQs. So this is something which you have to do. But yeah, post prelims for a net cycle for 2027, we will definitely be coming for this. We will help you in developing the content from PYQs. Yeah, the next thing is analyzing the pattern of framing the questions. UPSC frame questions in a particular way. There is a pattern to these questions. Out of 100 questions, there is a particular pattern which UPSC follow, because UPSC 100 के 100 क्वेश्चन सही नहीं बना सकता, फॉर सही इन द सेंस कि जिससे सभी ऑप्शन सही हैं, और 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं बना सकता कि जिसमें नीदर ऑफ द अबव आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सभी स्टेटमेंट सही होनी, दैट बोथ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, किसी में ओनली 1 होगा, किसी में ओनली 2 होगा। सो इन दिस वे, बट इसको बनाने के लिए पैटर्न चाहिए होता है, एंड यूपीएससी हैज़ अ पैटर्न ऑफ दिस, एंड दिस इज नॉट अ न्यू पैटर्न। यूपीएससी follows this since past 15-20 years. So even if you apply this in the PYQs, even in the old questions before 2013, you will be able to find कि हाँ वहाँ भी ये पैटर्न है, एंड यूपीएससी तब से इसे फॉलो कर रहा है। सो इसी को बोलते हैं लॉजिक, बोलते हैं ट्रिक्स, बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, ये पैटर्न है, ये लॉजिक है, इसको मैं लॉजिक बोलता हूँ। कुछ लोग इसे एप्टीट्यूड बोलते हैं, कुछ लोग इसे रिस्क टेकिंग एपेटाइट बोलते हैं। तो हमें उन क्वेश्चन से वो पैटर्न को डिड्यूस करना है। वी हैव टू डिड्यूस दैट पैटर्न सो दैट जो हमारा रेंज है 70 to 80 का, हम उस रेंज को क्रॉस करें, एंड वी विल बी एबल टू रीच 95+, सो दैट आर सीट टू मेंस, आर एडमिट कार्ड टू मेंस इज सिक्योर्ड। तो हमारा बेसिक और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव वही है। बाकी सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि भाई मेंस से करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो हमारा ऑब्स्टेकल है वो है हमारा प्रीलिम्स 2026 को क्लियर करना। तो उसके लिए आज हम ये लॉजिक की जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बेसिस पे ये होगा। तो what is this logic, what this logic is all about? So it is about 2 things. First of all, it is about the mindset, it is about the aptitude. माइंडसेट इज कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, हमें अपने लॉजिक जो हमने डेवलप किए हैं उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाना है, विद पॉजिटिविटी ही वो कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई होगी। एप्टीट्यूड क्या है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि यूपीएससी वो क्वेश्चंस कैसे बना रहा है, उनमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच स्टेटमेंट इज राइट, एंड वेयर यूपीएससी इज प्लेइंग विद। So we have to develop that aptitude, so that we can like basically solve the questions, and the objective is these lecture is कि हमें वो aptitude को unfold करना है through these forthcoming sessions. तो the primary objective is to cover the PYQs from 2020 to 2025. ये 6 साल के PYQs होंगे,
जो आपको हेल्प करेंगे। एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू डू द प्रैक्टिस 3-4 टाइम्स। अब आपको यार 3 से 4 बार तो इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं कि आपने ये वीडियो देखी और आपको वो एप्टीट्यूड डेवलप हो गया। नहीं, अभी 2.5 महीने हैं आपके पास, आप इजीली इनको 3 से 4 बार देखिए। 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो है आपका एप्टीट्यूड डेवलपमेंट में आपका हेल्प करेगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई इन द रियल एग्जाम ऑन 24th May. So before going forward, let me tell you one thing, what these lectures are not about. These lectures are not a mantra to clear the prelims. They will just, अब कोई बच्चा 40 में स्कोर कर रहा है, अब वो सोचे कि यार मैं सीधा 95+ में स्कोर कर जाऊँ, तो भाई वो तो पढ़ाई से होगा, वो तो आपके स्टैटिक कंसेप्ट क्लियर करने से होगा, इन लेक्चर से तो नहीं होगा। सो दिस इज़ नॉट अ क्लियर कट मंत्रा टू क्लियर द प्रीलिम्स, बट या जो बच्चा 70 to 80 के बीच में स्ट्रगल कर रहा है और उसे 95 क्रॉस करना है कि स्टैटिक पे वर्क करके और साथ में इस एप्टीट्यूड या लॉजिक के साथ ये 95 पहुंचना आसान हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि दिस विल बी 100% डन, बट दिस विल इंक्रीज योर चांसेस। जैसे मेरे साथ हुआ था वैसे आपके साथ भी हो सकता है। सो देर इज़ नो एश्योर्ड गारंटी, भाई गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, तो इनकी भी नहीं है। इन द सेंस इनका मतलब कि सिर्फ आप इनके ऊपर रिलाई करेंगे तो भाई नहीं होगा, आपको अपने स्टैटिक के ऊपर, अपने फाउंडेशन के ऊपर काम करना होगा, उसके बाद ये सब चीज़ें काम करेंगी। लेट मी टेल यू वन थिंग, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछिए, किसी भी टॉपर से पूछिए, वो आपको यही बोलेगा कि आउट ऑफ दोज 100 क्वेश्चंस ही और शी वाज जस्ट नोइंग अबाउट 30 to 40 क्वेश्चंस। अब बाकी जो 60 से 65 क्वेश्चंस हैं, 60 to 65 क्वेश्चंस हैं, उनका क्या भाई? ये जो 35 से 40 क्वेश्चन है वो तो नॉलेज के बेसिस पे हो जाते हैं। इसमें आपको 100% श्योरिटी होती है कि भाई इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब इसमें से चलो सिली मिस्टेक्स हुई एक्सेट्रा हुआ, उसमें से 5 क्वेश्चन हमने मैक्सिमम डिटेक्ट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आप 30 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए, अब इससे तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। अब ये जो 60 से 65 क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक स्टेटमेंट पता है या 2 स्टेटमेंट पता है, या आप कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल ब्लैंक हो उसमें। सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू, दिस एप्टीट्यूड, दिस लॉजिक विल हेल्प यू कि इन 60 से 65 क्वेश्चन में से ना आप 30 क्वेश्चन और ले आओ। और सिंपल सा मैट्रिक है यार, अगर आप 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो और आप 60 क्वेश्चन ठीक ले आते हो, आपका स्कोर बनता है 100 एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम राइटिंग द मेंस। तो हमें ये 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपका स्टैटिक हेल्प करेगा कि भाई ये आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड आउट ऑफ दीज 60-65 जो हमें 30 लेके आने हैं, उसमें लॉजिक, PYQs और एप्टीट्यूड हेल्प करेगा। सो द वन थिंग इज कि यू हैव टू प्रैक्टिस एंड डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड थिंग इज कि भाई रट्टा नहीं मारना इन चीज़ का। यू डोंट हैव टू डू द रोड लर्निंग और जस्ट रट्टा नहीं मारना इन सब चीज़ों का। लर्न नहीं करनी है, आपको समझनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैम, यू हैव टू ऑब्जर्व दैम। रट्टा मारने जाओगे, हर क्वेश्चन में आपको फ्लो दिखेगा, यू विल बी स्केप्टिकल टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बट वेन यू विल ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू फाइंड कि हाँ यहाँ यूपीएससी का ट्रैप है, यहाँ यूपीएससी ने हमारे साथ खेलने की कोशिश की है, और यहाँ यूपीएससी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें 2 नंबर दे रहा है। सो यू डोंट हैव टू लर्न, यू हैव टू ऑब्जर्व कि भाई ये पैटर्न है और इस पैटर्न के बेसिस पे यूपीएससी हमारे साथ प्ले कर रहा है। यू हैव टू डेवलप दैट मेमोरी विद ऑब्जर्वेशन। जो मेमोरी डेवलप करनी है सो दैट कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए और आप उसको सोल्व करो तो वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगा, सो दैट इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई इन द एग्जामिनेशन होल। अब मेरा एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, वो ये कि स्टैटिक इज द किंग। स्टैटिक जो है किंग है। आप स्टैटिक के बिना, स्टैटिक के ऊपर कमांड के बिना आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं ना, तो उन 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो कम्प्लीटली स्टैटिक होंगे, जो आपने लक्ष्मीकांत या किसी और बुक से पढ़े होंगे, कोई और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से पढ़े होंगे। तो यार वो 10 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने हैं। बाकी जो बचे 5 क्वेश्चन हैं वो आपको लॉजिक से क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इको है, इको में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यार 15 में से 10 क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक में से होगा।
वो अपने मृणाल सर से पढ़ा है या किसी रमेश सिंह सर की बुक से पढ़ा है या किसी भी चीज़ से पढ़ा है, तो वो 10 तो क्वेश्चन आपके होने चाहिए, बाकी बचे 5 वो लॉजिक से हो जाते हैं। तो स्टैटिक इज द कीन, स्टैटिक के बिना नहीं हो रहा। ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इको में इसमें तो मस्ट है। सो these lectures are not a substitute of static knowledge. You have to develop your static knowledge. That is very, very important. You can't mess with your attempt just because you were not ready for the static knowledge. You were not ready with the static knowledge. So lastly, it is not a free time thing कि यार binge watching करने बैठे हो नेटफ्लिक्स की तरह, नहीं। एप्टीट्यूड डेवलपमेंट रिक्वायर सीरियस एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स। इन सिंसियर एफर्ट्स के बिना यार नहीं हो रहा। अगर आप सोचते हो कि बिंज वॉचिंग कर लो तो उससे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, और जब तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, एग्जाम में होगी ओवर थिंकिंग, एंड दैट विल किल योर सक्सेस रेट। So just to avoid this overthinking in the exam hall and to develop the confidence so that you can apply this logic in the paper, in the final paper, you require serious efforts and 2.5 months हैं। पूरा अभी मार्च पड़ा है, अप्रैल पड़ा है, और मई भी है आपके पास। 24 में कौन सा है आपके पास आपको, तो सॉरी हाँ, तो आपके पास पूरे 2.5 months हैं। एंड इन दिस लिमिटेड टाइम यू कैन ईजिली डेवलप दिस एप्टीट्यूड। मैंने किया है, मेरे फ्रेंड्स ने किया है, आप भी कर सकते हैं। और ये नहीं है कि भाई पहली बार ही ऐसा हो रहा है, बाकी बच्चे भी करते हैं तो आपका भी हो जाएगा। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन आता है, मतलब मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला है कि यार ये 2026 में अप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो कंसर्न है ना, ये मेरे साथ भी आया था जब मैंने ये सब चीज़ें पहली बार सीखी थी। तो मेरा जो डाउट था वो 2025 में अगर ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं हुई तो क्या हो रहा। जस्ट टू टेल यू, एवरी ईयर you will be able to apply these things. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है इस साल। तो उन्होंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के बाद उनको डेंगू हो गया था एंड ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट। तो जो रिकवर होकर आए थे वो आए थे ऑलमोस्ट अप्रैल एंड में आए थे। अप्रैल एंड में जब आए ना, अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक के आसपास, उनके पास टाइम नहीं था रिविजन का। बट हाउस एवर लाइक उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपना 15 से 20 दिन के अंदर रिविजन निपटाई। रिविजन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बट उन्होंने किया एंड ही वॉज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स 2025। एंड वाई इट हैपन बिकॉज उनका एप्टीट्यूड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर मेहनत की हुई है, और इतनी मेहनत की हुई है कि विद लिमिटेड रिविजन, with limited time which he was able to clear the prelims easily। और ये कोई मंत्र नहीं है यार, ये प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करोगे, तो ये आपके साथ भी होगा कि लिमिटेड रिविजन के साथ ही यू विल बी एबल टू अप्लाई दीज थिंग्स इन द पेपर एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। सो नेक्स्ट थिंग इज कि what will be the pedagogy of this course, of these videos. So it will be the basic introduction of course, an aspirant to aspirant, because I also an aspirant, and I will be contributing to your success through these bare minimum efforts. And so first thing is the basic introduction which I am giving you today, and the next video will be on the logic and themes based discussion। अगर कोई एक लॉजिक है, लॉजिक 1 है फॉर एग्जाम्पल, एक लॉजिक में आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन।
that something is there which is defined in no institution, वो जनरली गलत होता है, वो रॉन्ग होता है। तो ये सब लॉजिक मैं से आप बताऊंगा कि लॉजिक की आपको लिस्ट बनवाऊंगा, एंड उन लॉजिक के बेसिस पे कुछ 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, एंड पहले उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है PYQs के ऊपर जाएंगे। पहले तो हम लॉजिक के ऊपर काम करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे लॉजिक है। सो ये मतलब प्राइमरी मोटिव इसका ऐसे करवाने का ये है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कि सो दैट डायरेक्टली जब मैं 2020 का पेपर उठाऊँ या 2020 का जब पेपर उठाऊँ मैं आपके पास, तो वो आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई वो कहना क्या चाहता है UPSC का क्वेश्चन, उसमें वो कैसी चीज़ें लगेंगी। तो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस। What are my expectations from you? You have to watch these lectures, these videos 2 to 3 times. अब ये मत बोलना यार व्यूज़ के लिए बोल रहा है, नहीं मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा। मेरा जो सिर्फ इतना जो प्राइमरी मोटिव है वो ये है कि आप अपना एप्टीट्यूड डेवलप कर लो, क्योंकि एक बार देखने से ये चीज़ें नहीं याद होती, ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं होती, ये चीज़ मेमोरी में नहीं बैठती। तो आपको 2 से 3 बार इसे करना पड़ेगा, 2 से 3 बार के एफर्ट्स जाएंगे और उसी के बेसिस पे होगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज की रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न। अब इसका मतलब क्या है, व्हेन आई विल बी टेकिंग द वीडियोस विद यू, तो आपको PYQ के साथ बैठना है और वो चीज़ें वहाँ पर पेपर में, क्वेश्चन पेपर में नोट करनी है, और वो क्लास पूरा हो जाने के बाद आपको उनको रिवाइज करना है। दिस रिविजन इज़ मस्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू आर अप्लाइंग दिस थिंग्स, वो मैंने चीज़ें कैसे बताई एंड हाउ विल, क्योंकि मेरा बताने का तरीका कुछ और हो रहा, आपका ऑब्जर्व करने का तरीका अलग हो रहा, सो दैट एक जो दिमाग में जो चीज़ें बैठेंगी, जो मसल मेमोरी बनेगी आपकी, वो आपकी खुद के प्रैक्टिस के हिसाब से बनेगी, एंड वो प्रैक्टिस तभी होगी जब आप इसे रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट थिंग इज कि ट्राई अटेम्प्टिंग योर सेल्फ इन द नेक्स्ट पेपर। तो जैसे ही 2020 का पेपर पूरा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो 2021 की आएगी, उस वीडियो को देखने से पहले आप खुद 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। भले आपके 25 से 30 ही सही हो रहे हैं, बट यू हैव टू सॉल्व देम फर्स्ट, दिस इज मस्ट। हाँ, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि डोंट टेक द स्टैटिक फॉर ग्रांटेड, भाई स्टैटिक मस्ट है, उसके बिना पेपर नहीं हो रहा। अगर कोई बोलता है कि भाई मैंने तो स्टैटिक नहीं पढ़ा, मैंने 2 महीने की रिवीजन में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, तो भाई उसी बात में मत जाना। या तो वो बिल्कुल ही एक्सेप्शन केस है कि भाई फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो उसने पढ़ा उसके दिमाग में छप गया है, या फिर वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी बातों में नहीं जाना। स्टैटिक इज मस्ट, स्टैटिक इज द किंग। द लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस PYQs 3-4 टाइम्स। PYQs प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 3 से 4 टाइम। मैंने अपने टाइम में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स प्रैक्टिस किए थे, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3-4 टाइम्स। तो एंड प्रैक्टिस जैसे करने हैं, जो कोचिंग की या जो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं PYQs की बुकलेट, उसमें नहीं करना। UPSC की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से PYQs डाउनलोड करो और उनमें प्रैक्टिस करो। एंड ऐसा बोलने का मेरा प्राइमरी मोटिव ही है बिकॉज क्योंकि UPSC का ना यार एक खुद का पैटर्न है क्वेश्चन बनाने का, खुद का फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट हमें कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं मिलता, वो फॉर्मेट हमें बुक्स में नहीं मिलता। तो हमें फैमिलियरिटी चाहिए उस फॉर्मेट के साथ। तो वो फैमिलियरिटी तभी ही बनेगी जब आप PYQs UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो वो पेपर भी हम UPSC की वेबसाइट से ही उठाएंगे, हम उसी पेपर में सॉल्व करेंगे, सो दैट की जो आपकी मेमोरी है ना वो डेवलप हो। दिस इज मस्ट। तो आपको जो सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस करने हैं, वो PYQs वाले उन्हें UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करके क्वेश्चंस में ही सॉल्व करना है। सो लास्ट थिंग इज कि व्हाट विल यू गेट इफ यू आर स्टक ऑन द मार्जिन की 70 से 80 आ रहे हैं या 2-3 क्वेश्चन से छूट रहा है, तो आई विल मेक श्योर कि इन लॉजिक की हेल्प से यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस मार्जिन so that you can write your mains. So if you are stuck on the margin, I can assure you कि with these videos 10 से 20 नंबर तो यार बढ़ जाएंगे आपके। गारंटी नहीं है, सब्जेक्ट टू योर प्रैक्टिस, सब्जेक्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग, कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है आपकी और आपने कितना प्रैक्टिस किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बढ़ जाएगा।
2024 में मेरा जो स्कोर बना था वो 78 बना था, ठीक है। और 2025 में मैंने जब अपनी कोचिंग से जब अपना मैथ्स किया था स्कोर, दैट वाज समथिंग अराउंड 100। तो ये जो 22 नंबर का जंप हुआ ना, ये इन्हीं लॉजिक से हुआ है। अब ऐसा नहीं बोलूँगा यार 2025 का पेपर ईजी था, आप सबको पता कैसा पेपर था, बट ये जो 78 से 100 का जंप हुआ है, ये इन्हीं लॉजिक की हेल्प से हुआ है, ये रिविजन की है। एंड इसमें भी ऐसा नहीं है यार कि मैंने मतलब बिल्कुल ही हर 100% अपना अप्लाई कर दिया था। देर विल बी लाइक देर वर सम 7 to 8 क्वेश्चंस जहाँ मैंने ओवर थिंकिंग की। अगर उन 7 to 8 क्वेश्चंस में मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता, इफ़ आई जस्ट अप्लाइड द लॉजिक्स प्लेनली, या प्रेशर में ओवर थिंकिंग होती है, सबके साथ होगी, वो आपके साथ भी होगी। स्ट्रेस आएगा पेपर में, गलतियाँ होंगी, ब्लंडर्स होंगे, सिली मिस्टेक्स होंगी। बट मेरा कहना है कि अगर मैं वो अपना लॉजिक, अपना एप्टीट्यूड उन 7 से 8 क्वेश्चन में भी लगा देता जो मैंने सिली मिस्टेक या ब्लंडर किए हैं, तो मेरा स्कोर आराम से 120 प्लस होता। बट लाइक नॉर्मल एस्पिरेंट, लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, तो गलतियाँ मेरे से भी हुई थी, बट स्टिल आई वॉज इन द सेफ जोन कि मैं अपना प्रीलिम्स क्लियर कर पाया। So this is the one thing. And just lastly, if you like think you have some doubts and you are not able to prepare properly, या थोड़ा गाइडेंस चाहिए आपको या मेंटरशिप चाहिए, you can write me at rentrust.approach.csc@gmail.com। नंबर तो मैं नहीं शेयर कर सकता अभी अपना, तो आप यू कैन राइट टू मी एट दिस मेल। डोंट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, and my schedule is also hectic. So, but yeah, I will definitely reply to your mails within the time limit. I can assure you, and I will try to help you resolve your doubts, your queries as much as I can with my experience. And last question ki why am I doing this? First of all, there is too much content on YouTube. उसी कारण क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है। एक इंसान सेम क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है, दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है। एक दिक्कत पता क्या है इन सब चीज़ों में, जब ये चीज़ है ना मार्केट में फैल जाती है तो एग्जैजरेशन बहुत हो जाता है। पीपल ट्राई टू सुपर इम्पोज। लास्टली, अपनी गलती नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल 2025 में क्वेश्चन था आई गेस माइक्रोप्लास्टिक वाला, वो क्वेश्चन मैंने गलत किया था। क्यों गलत किया था वो 25 का पेपर जब सॉल्व करेंगे वो बताएंगे, बट देयर आर पीपल्स नहीं बताएंगे यार कि हमने ऐसा क्वेश्चन गलत किया था। सो आई विल बी टेलिंग माई मिस्टेक्स ओनली, कि भाई ऐसे यहाँ मैंने गलती की थी जो आपको अवॉइड करना है। तो बाकी एक यार यूट्यूब पे फर्स्ट ऑफ ऑल की कंटेंट बहुत सारा है, उससे कारण कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी लोग एग्जैजरेट बहुत करते हैं, कुछ भी बताते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मैंने कम से कम 25 से 30 वीडियोज़ ऐसे देखी हैं जहाँ बंदा कुछ भी बोल रहा है, लिटरली कुछ भी बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, उसमें कुछ वर्ड दिया हुआ है स्टैगफ्लेशन, और एक वर्ड दिया हुआ है एस से ही कुछ वर्ड दिया हुआ है, तो जस्ट बिकॉज एस और एस से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं तो इनमें से एक आंसर होगा। यार नॉनसेंस है चीज़ें, और बच्चे फिर अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ें गलत होती हैं। तो श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन ऐसा कुछ ऐसा था। तो स्टैगफ्लेशन और श्रिंकफ्लेशन दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनमें से एक गलत होगा। ये बकवास है, रबिश। तो हमें इन सब ट्रैप्स में नहीं फंसना, हमें अपना लॉजिक डेवलप करना है, हमें अपना एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करना है। और ये हो रहा प्रैक्टिस से, ये हो रहा रिविजन से, और ये हो रहा अब किसी एक बंदे का एक्सपीरियंस सुन के। सो आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मैंने क्या गलतियाँ की थी और कैसे मुझे एडवांटेज दूसरी चीज़ों में मिला। सो या द नेक्स्ट थिंग इज कि अब मेरे दोस्त जिन्होंने लाइक मेंस लिखा है इस बार, and my friends, I understood these things and applied in our exam. So 2025 was my first mains, and we wrote a mains. अब उसका रिजल्ट क्या रहा, that is a secondary thing. So yeah, we wrote our first mains. We like हमारा ग्रुप था 5 लोगों का, and out of them 3 were able to write the mains, the first mains. अब उन 2 का क्या हुआ वो कभी और बात करेंगे, but yeah, we applied these things, we revised the things, we practiced the things extensively. And we were able to clear the cutoff.
and that's why like contribute in the aspirant community through my learning and experience. कुछ नहीं है यार, मेरे को भी नहीं पता था. आई वॉज अ डम एस्पिरेंट इन 2023. मुझे कुछ नहीं पता था इस डम, मतलब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था. गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, और कोचिंग में जैसा चल रहा था मैंने पढ़ लिया. बट जब 2023 का पेपर दिया तो भाई आँख खुल रही कि जो सिर्फ कोचिंग में पढ़ा रहे हैं यार उनसे तो नहीं हो रहा. तो वी नीड सम गाइडेंस, वी नीड सम अंडरस्टैंडिंग. तो 2023 में यार मैं डम एस्पिरेंट था. बट फिर मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें 2024 में पता चली. आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई दैम विद लाइक होल हार्टेडली विद कॉन्फिडेंस, तो नहीं हुआ. फिर 2024 से 2025 के बीच में मैंने प्रैक्टिस की, मैंने टाइम दिया उसके ऊपर, एंड आई वॉज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स 2025. सो यस, मैं ये सब चीज़ें मैंने एस्पिरेंट फ्रेटर्निटी से ही सीखी है, एस्पिरेंट कम्युनिटी से ही सीखी है. सो आई एम गिविंग बैक टू द सेम कम्युनिटी, therefore contributing to the aspirant community through my learning and experience. So yeah, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो. एंड या अभी रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बाद लाइक आई विल शेयर माई मार्कशीट ऑल्सो, कि आपके पास एक क्रेडिबिलिटी हो कि या मैंने किया है प्रीलिम्स क्लियर. एंड आई विल शेयर माई ओल्ड मार्कशीट ऑल्सो 2023 और 2024 की. या टिल देन स्टे ट्यून्ड. एंड थोड़ा मौसम बदल रहा है तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना. एंड हैप्पी लर्निंग. सी यू सून.